Hey guys, hi. If you can hear me and see me, could you quickly let me know by in the chat box? That would be great. Come on, guys. Just give me one moment. Yeah, this is better. What has happened today? Okay, reconnection successful. Great, we are here. Wow, cool. Is there something wrong? No, I don't think so. Guys, can you hear me and see me? If yes, I want you to type something in the chat box. Hi Rishika, good evening, beta. So, guys, fatafat, everyone quickly join the chat. Fatafat. Nizam, good evening, beta. Chandan, hi. So, guys, welcome to Unacademy. Let's crack foundation NTSE channel. And you know what we do here, right? We here try to prepare for exams like NTSE, NSEJS / IOQB, foundation, and all of that, right? So, guys, welcome. Okay, now let's get started. So, सबसे पहले what do we do in each class? Hi Shravan. Oh, that's great Nizam, that's great. So guys, सबसे पहले क्लास की शुरुआत में हम क्या करते हैं? What do we do in the beginning of a class? We discuss the plan. Very good. सबसे पहला काम हमारा क्या है? Plan. Guys, whenever I look towards the right, मेरा right मतलब this is my right, but शायद आपके लिए ये left है. नहीं, same है, ठीक है. Whenever I look towards my right, that means मैं चैट पढ़ रहा हूँ. लेफ्ट को जब देखूँ ना तो मतलब आई एम राइटिंग. ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना. सो व्हाट इज द प्लान? वंस अगेन दिस इज अ रिविजन सेशन, है ना? ये रिविजन सेशन है. सो विल क्विकली रिवाइज एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट हम पढ़ चुके हैं, एंड देन वी विल गो अहेड. ठीक है, फिर हम जर्नी को आगे बढ़ाएंगे. Right? First, we'll do a quick revision of everything and anything that we have talked about. Then we'll start with quick coverage of concepts that I was already at. Right? So, बहुत ही simple फंडा है. So, before I do start, guys, ये schedule है. इसको अपने दिमाग में फोटो स्टेट कर लो. सुबह 8:30 बजे लाइव नहीं, रिकॉर्डेड. रात को 8 बजे लाइव. स्पेशल क्लासेस वेंसडेज एंड फ्राइडेज, प्लस क्लासेस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4:30 बजे. ये है मेरा टेलीग्राम जहां पे यू कैन कनेक्ट विथ मी, यू कैन टॉक, यू कैन आस्क डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स. और वो रहा ट्रैकर का लिंक, दैट इज bit.ly/3GSBNNJ. ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी किसी को होगी ही नहीं. राइट? अभी एक इमर्ज वी हैव ब्रॉट कम अप विद इमर्ज, जिसमें टर्म 1 का जो सीबीएसई एग्जाम होगा, सीबीएसई टर्म 1, उसी के बेसिस पे एमसीक्यू का इंटेंसिव टेस्ट होगा 90 मिनट का. Is this the last lecture? Not exactly. This is not the last lecture. We'll have one more session. एक और सेशन होगा. ठीक है. So as a part of एमआर you get a detailed performance report. पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलता है. ऑल इंडिया रैंक आपको मिलती है. Not only that, you also get to know where you could do better. तो क्लास 10th के लिए मैथ्स और साइंस का होगा, 12th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का होगा. कैसे इनरोल करें? फ्री. जस्ट डाउनलोड द ऐप, यूज द कोड SONA05, आपको एक्सेस मिल जाता है. ठीक है, और मेरे प्रोफाइल को फॉलो जरूर करना, बिकॉज फॉलो करने से यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय स्पेशल क्लासेस. कौन से स्पेशल क्लासेस? ये रही संपूर्ण सूची. राइट? This is the whole list of all the special classes that I am going to take on the channel. ठीक है? I think this much is cool, and now we can move ahead. ठीक है? So guys, features क्या है special classes के? बेटा YouTube से एक्स्ट्रा है. क्या एक्स्ट्रा है? रियल टाइम है, क्विजेज है, और सिर्फ क्विजेज ही नहीं, आपको पोल्स भी मिल सकते हैं. You can even ask your questions by uploading a picture or something, right? So there's a lot of things that you can do there. ठीक है, चलो. Now with that said and with that done, let me just go to my leaderboard. One more lecture होगा बेटा, there would be one more lecture, don't worry. ठीक है, so let me go to my leaderboard. चलते हैं, sorry, white board पे चलते हैं, और white board पे we will start our discussion. ठीक है, just give me one quick moment so that I open my leaderboard. चलो, ये रहा leaderboard. White board, not leaderboard. Okay. So guys, that's the whiteboard. Okay.
ना अब हमारी कहानी शुरुआत कैसे हुई थी, राइट? सो हमारी कहानी शुरुआत कैसे हुई थी गाइस? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर हाउ डिड वी स्टार्ट आवर स्टोरी? एक सेकेंड, yeah, this is better. How did we start our story? Okay, there's light. Yep, I think now it's good. How did we start our story, बेटा? नहीं, एकदम शुरुआत में मेंटी नहीं है बेटा, नो मेंटी राइट नाउ बेटा। क्विजेस के लिए ना स्पेशल क्लासेस आप बेटर है। यस, वेरी गुड। वी स्टार्टेड बाय डिस्कसिंग कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। वाई आर वी स्टडिंग द चैप्टर? क्योंकि हमने बोला कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हमने बोला कि भैया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, है ना, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है, राइट? और उस पॉपुलेशन से क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से फूड अवेलेबिलिटी फूड अवेलेबिलिटी डिक्रीज होते जा रही है। यानी आपको बस फूड की क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है। क्यों भैया? पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, बट पॉपुलेशन के कारण से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुए उससे एक आम आदमी कितना खरीद सकता है, दैट हैज रिड्यूस्ड, राइट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू डू व्हाट? आपको क्या करना है? यू हैव टू इंक्रीज टू थिंग्स। आपको दो चीजें इंक्रीज करनी है। वो क्या करनी है बेटा? यू हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड यू हैव टू इंक्रीज क्वांटिटी। फिर हमने देखा कि इसके कुछ रास्ते क्या हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स, राइट? वी हैव टू मेक श्योर दैट वी रिड्यूस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जितना ज्यादा कम रिक्वायर हो, जितना कम पानी में काम चला ले उतना बढ़िया। एंड you have to reduce the requirement of the plants and you have to increase the resilience of the plants. resilience मतलब अगर कोई आपदा आती है, या बेसिकली कह लें, resilience वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे कह लेते हो, you want to do what? You want to protect the plant, डिजीज ना हो, है ना, राइट? विपत्ति या डिजीजेस ना हो, जो आपने प्रोड्यूस किया वो बर्बाद ना हो, राइट? सो यू हैव टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन। सर ओनली 3 स्टूडेंट, बेटा कोई बात नहीं, राइट? जितने हैं लेट्स ट्राई। एंड गाइज डू स्प्रेड द वर्ड बेटा, है ना? आई डोंट नो व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट टर्निंग अप, आई रियली डोंट नो, बट डू स्प्रेड द वर्ड अबाउट द सेशंस, ठीक है? चलो अब पढ़ने पे ध्यान देते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या था भैया? हमने पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फूड अवेलेबिलिटी घट रही है, तो प्लांट के रिक्वायरमेंट्स को सॉर्ट करो, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करो, राइट? एंड वी हैव टू डू ऑल ऑफ दिस इन अ सस्टेनेबल फैशन, राइट? सो इसको मैं प्रॉब्लम के आगे लिख देता हूं एजेंडा मतलब what is the importance of the chapter। तो हमें इन सभी चीजों को सस्टेनेबल फैशन में करना है। क्यों? ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया तो लॉन्ग टर्म सॉइल क्वालिटी घट जाएगी, है ना? ज्यादा पानी यूज किया तो पानी पीने के लिए नहीं बचेगा, राइट? सो वी हैड these problems and these problems can only be solved अगर हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज करें। अब हमने बोला कि प्लांट हो या एनिमल, अगर यू वांट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स यू हैव टू वर्क इन 3 स्टेप्स। पहला, यू हैव टू वर्क ऑन अ बेटर वैरायटी। एक अच्छी वैरायटी बनाओ, और अच्छी वैरायटी का मतलब फिर हमने डिफाइन किया। व्हाट इज एन अच्छा वैरायटी? एन अच्छा वैरायटी इज द वन दैट हैज लेस रिक्वायरमेंट्स एंड इट हैज मोर वैल्यू। लेस रिक्वायरमेंट्स मोर वैल्यू, ज्यादा वाइटामिन्स, ज्यादा अमाइनो एसिड्स, राइट? लेस रिक्वायरमेंट्स, कम पानी है फिर भी काम चल जाएगा, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, है ना?
salt resistance, right? So salt resistance, फिर pest resistant, right? तो हमने बोला वैरायटी को कैसे इंप्रूव करें, उसका रिक्वायरमेंट्स घटाओ, उसकी वैल्यू को बढ़ाओ। रिक्वायरमेंट्स कैसे घटाएंगे, सॉल्ट रेजिस्टेंस बनाओ, पेस्ट रेजिस्टेंस बनाओ, पेस्टिसाइड यूज ना करना पड़े, राइट? उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाओ, राइट? इसी तरह तो हम वैरायटी को इंप्रूव करेंगे। डिटेल अभी मैं डिवीजन कराऊंगा, डोंट वरी। फिर हमने बोला कि अच्छी बात है, वैरायटी को इंप्रूव हो गया, अब जो है क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको इंप्रूव करो, राइट? ओके, एंड वी विल सी कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था। और लास्टली हम बोला था कि प्रोटेक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करो, कि आपने जितनी भी फसल बनाई उसका बहुत कम हिस्सा बर्बाद हो। निजाम, और पेस्टिसाइड्स क्यों नहीं यूज करेंगे बेटा? बेटा देखो, पेस्टिसाइड्स आप कहां पे यूज कर रहे हो, पत्तों पे, पौधों पे, राइट श्रवण? जब ये वेजिटेबल्स जिन पे आपने पेस्टिसाइड्स छिड़का वो आपके सर्कुलेशन में आएगा, तो क्या आप मानते हो कि पेस्टिसाइड आपके अंदर भी जाएगा, राइट? आपके अंदर भी जाएगा। उसका नुकसान क्या है, दैट पेस्टिसाइड हमारे लिए भी हार्मफुल है, राइट? पेस्टिसाइड आपके लिए भी हार्मफुल। बेटा ह्यूमन आई वुड बी जस्ट आफ्टर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जस्ट बाद आई विल कवर ह्यूमन आई, क्योंकि ह्यूमन आई एनटीएससी में थोड़ा हाई लेवल में पूछ लेते हैं। तो राहुल सर और मेरा एक आइडिया था कि ह्यूमन आई वो भी थोड़ा सा पढ़ाएंगे, एंड आई विल गो इन डेप्थ ऑफ इट, बिकॉज आपका ह्यूमन आई भी जरूरी है, राइट? सो इस चैप्टर के खत्म होने के लिए आपको 2 और क्लासेस चाहिए। ये रिवीजन क्लास है, एक और क्लास होगी, दिस चैप्टर इज ओवर बाय दैट। उस क्लास के ठीक बाद, यानी जो कमिंग वीक होगा, कमिंग वेंसडे होगा, उस वेंसडे को हम ह्यूमन आई करने वाले हैं, ठीक है? तो ह्यूमन आई के लिए आप फिजिक्स वाला लेंस पढ़ के आना, मैं बायो वाला रॉड्स एंड कोन्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? नो 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 राहुल सर, अरे यू हैव अ चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें ह्यूमन आई है, बट उसका जो लेंस वाला पार्ट है वो राहुल सर बताएंगे, पूरा कैसे रे बेंड होती है ना, उसमें पूरा डिफ्रैक्शन वगैरह वो राहुल सर बताएंगे। आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ द बायोलॉजिकल पार्ट, है ना, द लेयर्स, क्लेरा, कोरोइड, रेटिना, रेटिना के लेयर्स, पिगमेंटेड, नर्वस, रॉड्स एंड कोन्स, टाइप्स ऑफ रॉड, टाइप्स ऑफ कोन्स, है ना, right? What are bipolar cells, what are macrine cells, right? What are ganglion cells, what's optic nerve, है ना, what's the job of optic nerve, what's rhodopsin, ये सारी चीजें जो बायोलॉजी का पार्ट है वो मैं कराऊंगा, जो फिजिक्स का पार्ट है वो राहुल सर कराएंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक है, आप परेशान मत होना, अब इधर फोकस करो। सो वी विल इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू एज वेल, ठीक है? अब ये सारा काम हमने कैसे किया, हाउ डू वी वांट टू डू ऑल ऑफ दिस, वैरायटी को कैसे इंप्रूव करें? तो हमने बोला वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो सदियों से चलता आ रहा है, प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स में आप 2 वैरायटीज लो, टेक 2 वैरायटीज, एक वैरायटी के पास कोई अच्छा फीचर होगा, दूसरी वैरायटी के पास कोई दूसरा अच्छा फीचर होगा, you combine them, you do a mating and you pray to the god कि भगवान प्लीज जो मेरा हाइब्रिड बने उसमें दोनों के प्रॉपर्टीज आ जाएं, you pray to the god कि इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएं, बट अक्सर अच्छी के साथ कभी कभी बुरी प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। सो दैट इज व्हाई मेकिंग ऑफ हाइब्रिड्स इट एक्सट्रीमली सेफ बट नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। हाइब्रिड्स बनाना एक्सट्रीमली सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि आप 2 ऐसे प्लांट्स के बीच का कॉम्बिनेशन बना रहे हो जिसको आप कंज्यूम करते थे, है ना? यू आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग बोथ ऑफ दी प्लांट्स, बोथ आर प्लांट वैरायटीज। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक वैरायटी में प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरे वैरायटी से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी का एक नेक्स्ट हमने पढ़ा कि देयर इज a way to have more selectivity,
that is producing a GMO, genetically modified organism, जिसमें कोई भी रिलेशन की जरूरत नहीं है। आप एक बैक्टीरिया से चाहो तो जीन ले लो और एक प्लांट में डाल दो, टोटली पॉसिबल। हमने इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? जल्दी से मुझे चैट में बता दो, हमने इसका क्या एग्जाम्पल पढ़ा था? Come on guys, quickly tell me in the chat. Sir, some months ago you were teaching by standing and using chroma key. That was more awesome than now. Yes, that was more awesome than now. यार पढ़ के ना मतलब standing definitely it allows me more movement, but well, logistics. Okay, logistics बेटा. I'll see and I'll try. ठीक है. So BT cotton, राइट, बहुत सही, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का हमने एग्जांपल लिया था कि जो बीटी है ये कहां से आया? बीटी बैसिलस, राइट, ये आया बैसिलस तुरिनजेनेसिस। बेटा रिमेंबर द टर्म, बैसिलस तुरिनजेनेसिस से क्राई जीन हमने लिया। इसी क्राई जीन से एक टॉक्सिन बनता है, ये टॉक्सिक बॉलवर्म को के पेट में छेद कर देता है। इसी क्राई जीन को निकाल के कॉटन में डाल दिया, बिंगो, है ना। अब जो है मेरा कॉटन जो है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये टॉक्सिन ह्यूमंस के लिए हानिकारक नहीं है। बट वही बात है, आपने जो जीन्स काटा, गलती से कोई ऐसा डीएनए का सेगमेंट आ गया जो आपके लिए कोई हार्मफुल प्रोटीन कोड कर दे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। वी डोंट वांट दैट हैपनिंग। सो बेटा इसीलिए मोस्ट ऑफ द जीएमओ क्रॉप्स इंडिया में बहुत सारे नहीं हैं। इंडिया में बस एक क्रॉप को सरकारी अप्रूवल मिला है जो कि है बीटी कॉटन। बीटी ब्रिंजल को सरकारी अप्रूवल आने वाले सालों में मिल जाएगा। इट हैज ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द जीईएसी। गवर्नमेंट अप्रूवल कमर्शियलाइजेशन का आने वाले 2-3 सालों में उम्मीद है शायद मिल जाना चाहिए। ठीक है। सो सरकारें, गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड इस पे बहुत टाइट कंट्रोल रखती है बिकॉज दे नो कि इसके पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, राइट। तो ये हमने बातें की थी कि भैया ऐसे हम वैरायटी इंप्रूव करेंगे। चलो अब आप मुझे खुद बताओ कि भैया प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करें। नाउ यू टेल मी, प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करें और उसमें इंप्रूवमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। If I want to improve the production process, what things should I, make sure that are aligned with the thing? Come on. Very good. Cropping patterns is one of them. ओके, सो हमने बोला कि प्रोडक्शन को सबसे पहले हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सीखना होगा, राइट। हमने बोला कि हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सीखना होगा। हमने बोला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भैया कैसे सीखें, तो हमने बोला कि भैया फर्टिलाइजर्स इंप्रूव करो, है ना, मैन्योर्स इंप्रूव करो और प्लांट का कंपटीशन हटाओ। हमने बोला प्लांट का कंपटीशन हटाओ, वीडीसाइड्स यूज करो। बट हमने क्या बोला, इन सभी के कोई ना कोई नुकसान है बिकॉज फर्टिलाइजर्स एंड वीडीसाइड्स स्पेसिफिकली दे आर केमिकल्स, सिंथेटिक केमिकल्स हैं ये लोग, है ना। और ये जो है बह के पानियों के साथ, है ना, मुझे बहने दो करते करते ये आपके वाटर बॉडीज में पहुंच जाएंगे, वहां यूट्रोफिकेशन करवा सकते हैं, राइट। तो हमने बोला फर्टिलाइजर्स वीडीसाइड्स के जगह पे बायो फर्टिलाइजर्स यूज करो भाई, है ना। हमने बोला कि डोंट वरी, यूज बायो फर्टिलाइजर्स, यूज बायो वीडीसाइड्स, है ना। इससे क्या होगा, यू विल डू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इसी पे क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट। फार्मिंग डन विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स को क्या कहते हैं? मेडिवल फार्मिंग? नो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्यों ऑर्गेनिक कहते हैं? बिकॉज आप कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल्स। ओके, सो फार सो गुड, है ना। फिर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के जो डिफरेंसेस हैं हमने वो पढ़े कि फर्टिलाइजर्स आपको सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देंगे, मिनरल्स देंगे, है ना, हाई क्वांटिटीज में देंगे, राइट। बट उससे सॉइल का पीएच चेंज हो सकता है,
गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, राइट। सो दिस आज सुबह सुबह ही आई, नॉट सुबह, दोपहर को आई वेंट टू बाय रोज, है ना, मुझे मुझे दो मेरे पुराने रोज अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई वॉज एट माई होम टाउन, तो मेरे रोज के प्लांट्स बेचारे मर गए, ऑलमोस्ट मर गए। आई एम ट्राइंग टू रिवाइव देम, बट so today I decided कि चलो now that I'm back in Delhi, चलो चलते हैं, let's buy rose plants, right? So I brought 2 rose plants. तो जैसे मैं उसकी पॉलिथीन कवरिंग को निकाल रहा था, मुझे उसके अंदर एक अर्थवॉर्म मिला। I was like वो what is this, right? So हमने पढ़ा था कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग और फार्म यार्ड मैन्योर, याद है ये चीजें? I hope you people remember this. इनका डिफरेंस, कंपोस्टिंग में you depend on the bacteria and the fungus, वो चीजों को तोड़ देंगे, है ना। वर्मी कंपोस्टिंग में आप अर्थवर्म्स को यूज करते हो, राइट। अर्थवर्म्स जो है उसको आराम से चिबा चिबा के दे विल chew it very nicely, they will digest, they will add, not chew, they will digest chemically, और ज्यादा नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं। फार्म यार्ड मैन्यूर में आपने पढ़ा कि काउ डंग और वैसा ऑर्गेनिक वेस्ट से आप मिला के उसे बनाते हो, राइट। तो आप इन सब चीजों को यूज करके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दोगे। फिर आपने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ही क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़े, राइट। क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़े, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ग्रीन मैन्योर्स का भी एग्जांपल पढ़ा था, वेरी गुड श्रेया। सन हेम्प, हाँ सन हेम्प पढ़ा था, राइट। मल्चिंग पढ़ा था, राइट। फिर हमने पैटर्न का एग्जांपल पढ़ा कि आप मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग कर सकते हो। व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग? मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग का मतलब है, ये हो गया आपका क्या, व्हाट इज दिस? इज दिस मिक्स क्रॉपिंग और इज इट इंटर क्रॉपिंग? अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, या सॉरी। सो दिस इज, ये मुझे बताओ, ये मिक्स क्रॉपिंग है या इंटर क्रॉपिंग है? आप मुझे बता दो। Come on guys, is this mixed cropping और intercropping? क्या है ये? Intercropping। क्यों? Definite pattern हो गया, right? Why is this intercropping? क्योंकि definite pattern हो गया, right? अगर कोई ऐसे अगर ऐसे कुछ है तो ये हो गया आपका mixed cropping, right? So what is this? This is mixed cropping। कोई पैटर्न नहीं है, राइट। तो ये हो गया आपके दोनों का इंटर वर्सेस मिक्स। फिर हमने क्रॉप रोटेशन पढ़ा। क्रॉप रोटेशन में क्या पढ़ा था, बता दो मुझे। देखो यार, आपको तो पता है आई एम भुलक्कड़, राइट। यू ऑलरेडी नो दैट आई एम भुलक्कड़, राइट। सो हाउ डू यू डिफाइन आपका, देखो मैं नाम भी भूल गया, क्रॉप रोटेशन। हाँ, क्रॉप रोटेशन को कैसे समझाओगे आप? अगर आप मेरे नाम बोलते भैया कि क्रॉप रोटेशन समझाओ, हाउ वुड यू? देखो आई एम लाइक सुपर फॉरगेटफुल, यू ऑलरेडी नो दैट, मुझे तो याद ही नहीं रहता कुछ। ओके, श्रवण से समथिंग डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप ड्यूरेशन। मान लो मैंने बोला कि आपको किसी को पढ़ाना है, कैसे ऐसे पढ़ाओगे डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप ड्यूरेशन? नहीं ना जीत, कैसे पढ़ाओगे? हाउ डू यू टीच अ पर्सन? हाउ डू यू टीच अ पर्सन बेटा? अगर आपको किसी को पढ़ाना हुआ तो आप उसे कैसे पढ़ाओगे? रेपिटेशन ऑफ क्रॉप। अभी तक मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला बेटा, मुझे अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो नहीं मिला, है ना। सो मतलब ओके, वेरी गुड। बेसिकली हमने क्या करेंगे कि हम वी विल ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स in an alternate fashion, in alternate seasons, right? Different crops grow करेंगे in alternate seasons with different nutritional requirement, जिनकी nutritional requirement एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। इससे क्या होगा, एक अगर ज्यादा नाइट्रोजन खा रहा है, एक ज्यादा फास्फोरस खाएगा, राइट।
इसका एग्जाम्पल हमने कैसे समझा था, पनीर और चिकन, कुछ लोग वेज खाएंगे कुछ लोग नॉन वेज खाएंगे, तो पार्टी का खाना खत्म नहीं होगा। दिस इज क्रॉप रोटेशन और क्रॉप इंटरक्रॉपिंग वगैरह भी, बट जस्ट द डिफरेंस इज सेम टाइम और द डिफरेंट टाइम। ठीक है, फिर हमारी बात हुई भैया इरिगेशन पे, राइट। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इरिगेशन, हमने बोला पानी तो जरूरी है, राइट। श्रेया, आई नो गाइस, सी गाइस, एक बात मैं बता दूं, एनीवन, यार देखो, आप पढ़ने आए हो पढ़ो, डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, राइट, डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। इससे क्या होगा, you are harassing someone. Let me tell you, Akash Rajput, let me tell you this very clearly, you are harassing someone, this is called harassment, and this is a cyber crime, कहीं भी पढ़ लो, this is a cyber crime, right? एक complain and you will ruin your future, right guys? So please do not whatever is your excuse for just being rude or being bad or being naughty, whatever you want, you think you are doing, you are ruining your future. Please do not disturb others who are here for studying. जो पढ़ने आए उनको पढ़ने दो, आपको नहीं पढ़ना, it's your choice, I respect your choice, right? So I will not answer, but at least दूसरों को पढ़ने दो बेटा, right? So guys, please don't disturb each other, and I'm so sorry Shreya, you have to face that, but क्या करें बेटा, देखो thing is ना, we have to become more resilient because आए दिन ऐसे होते रहता है, I have been abused even on the internet, क्या करें, right? So again, I have already blocked the person, but I think only उस ब्लॉक करने से सिर्फ मुझे मैसेजेस नहीं दिखते, I do not have override control or something, but अगर ये फिर से होता है, I can report it to the Unacademy team, they will block them from the channel, right? And the person who is doing it, please, it's a humble request, you have made your decision, please do not extend it upon someone else, right? I believe in everyone deserves a chance to improve, and I think you also do, but don't step in a perimeter which might land you a problem, right? Okay, चलो, now अब वापस क्लास पे आते हैं, right? Okay, everyone, now back to the class. इरिगेशन में हमने बोला कि पानी की रिक्वायरमेंट्स को हम केटर करेंगे। I know beta, I don't need to please anyone, so that's why I choose not to react, right? That's why I choose not to react, but as a teacher, I have to correct everyone, right? So that is why I can't outright discard everyone, right? So I have to keep a balance where everyone who still might have a chance to come on the correct path does come. I know Ajit, they do, but everyone deserves a chance, right? So sometimes, see, आप जब बड़े होगे ना, तो आपको realize होगा that everyone makes mistakes, but if you want to change something, you can't change by simply throwing something out. You can only change something when you engage with it, right, in a positive manner. तो कैसे पॉजिटिवली इंगेज करें, पहले आपको खुद में पॉजिटिव बनना है कि डजेंट मैटर कि मेरी आसपास की दुनिया कैसी है, I will always be an inspiration to anyone and everyone, right? So that is why we as teachers, we want to make sure that we give everyone a fighting chance so that they can improve. So we have to see light even if they can't, right? So that's the philosophy all of us teachers follow. That is why we don't become too harsh here, but क्या करें, कभी काल तो हो ही जाता है। चलो अब पढ़ लो, इधर उधर की बातें छोड़ो, पढ़ लो। ओके, इरिगेशन से क्या मतलब था भैया, पानी की जरूरतें पूरा करो। इरिगेशन भी हमने देखा कि ट्रेडिशनल मेथड्स तो हैं हमारे पास, बट हमने वो ग्राफ और टेबल देखा था रिसर्च का कि ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं सिर्फ 30 से 40% एफिशिएंट हैं। वहीं पे हमने ये भी पाया दैट इफ वी गो फॉर ड्रिप
अगर ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट देम, स्ट्रेट अवे इट कैन जंप फ्रॉम 60 टू इवन 80%, आई थिंक 80% था, है ना, 50 to 60% आपका स्प्रिंकलर्स में था और 70 to 80% ड्रिप इरिगेशन में था। तो हमने क्या देखा कि हमें हर एस्पेक्ट में, even in the minutest aspect, we have to improve, we have to keep on doing this। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर how will we improve our crops? तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस के इंप्रूवमेंट की बात की। अब हमने प्रोटेक्शन की एक्सप्लिसिटली बात नहीं की थी, राइट? वी डिड नॉट टॉक अबाउट प्रोटेक्शन प्रोसेस बिकॉज टेक्निकली इट्स नॉट रिगरसली इन योर सिलेबस, बट जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट कि भैया प्रोटेक्शन में होता क्या है ना। तो जब प्रोटेक्शन की बात करो तो आप पेस्टिसाइड्स की बात करते हो, है ना, यू टॉक अबाउट पेस्टिसाइड्स, यू इवन टॉक अबाउट स्टोरेज, है ना, आप फूड का जो ग्रेन्स है उसको कैसे स्टोर करोगे, हाउ डू यू मेक श्योर कि राइपनिंग ज्यादा ना हो, ओवरऑल राइपनिंग को थोड़ा कम करने के बाद, इसमें भी जीएमओ आ जाता है। इधर भी हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, राइट? अभी आपको नहीं पता है, बाद में आप पढ़ोगे हायर स्टडीज में, हमने टमाटर के साथ, प्याज के साथ जेनेटिक मॉडिफिकेशन का आइडिया लेकर आए हैं लोग कि टमाटर रखे रखे खराब होता है, राइट? और टमाटर और प्याज ऐसी चीज है जो आप हमेशा यूज करते हो, लगभग, एटलीस्ट इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है, राइट? सो अगर समहाउ यू कैन स्लो द राइपनिंग ऑफ टमाटर, यू विल सेव अ टन ऑफ फूड, बहुत खाना बच जाएगा, राइट? सो प्रोटेक्शन में हम शेल्फ लाइफ इंप्रूव करने के तरीके ढूंढते हैं, पेस्टिसाइड्स ढूंढते हैं, राइट? हाउ डू यू बेस्ट प्रिजर्व, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स को इंप्रूव करते हैं। प्रिजर्वेशन में मैंने अभी ये बताया नहीं है बिकॉज टेक्निकली आपके सिलेबस में नहीं है, बट आजकल यूएस में मीट एक ऐसी चीज है बहुत जल्दी खराब होती है, राइट? तो एक तो थोड़ा चीप तरीका है, कभी कल कुछ लोग फॉर्मलिन में डुबा देते हैं विच इज वेरी टॉक्सिक, राइट? फॉर्मलिन इज अ केमिकल जिसमें मीट एंड ऑल थोड़ा प्रिजर्व होता है, बट इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो आजकल जो है यूएस में दे हैव स्टार्टेड यूजिंग सम बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियोफाजेस आर वायरसेस, वो बैक्टीरिया के मीट के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, तो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते। सो प्रोटेक्शन जो है इट्स नॉट रिगरसली अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट टीच इट इन डिटेल, बट इस पे भी काफी काम चल रहा है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लांट food variety production and protection। I did not teach you about vertical farming, but वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है? बट अभी तक अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट्स नहीं है तो फिर तो भैया मेरे डाउट्स स्टार्ट होंगे। So guys, if you have any doubts you can ask, otherwise I will start asking a few questions and I think आप सभी लोग अब कुछ questions तो आंसर कर ही सकते हो, है ना? ओके सर, बैक्टीरियोफाज कुडंट बी हैवी ऑन ह्यूमन। नो बेटा, देखो बैक्टीरियोफाजेस आर वेरी, दे कैन नॉट अटैक ईच एंड एवरी सेल, और वो भी बैक्टीरियोफाज जिसको हम यूज करते हैं उसको इंजीनियर कर दिया जाता है, राइट? ऐसे स्ट्रेट अवे बैक्टीरियोफाज नहीं दिया जाता, उसको भी हम इंजीनियर करते हैं, राइट? सो वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग जो ह्यूमंस पे हावी हो जाए, वी इंजीनियर देम वेरी वेल। एनी अदर डाउट्स? बेटा प्लांट्स में कोई भी डाउट है अभी आप पूछ सकते हैं, चाहे वो इस स्क्रीन पे मिल रहे या ना हो, इस पे मैंने बस ओवरव्यू दिया है, डिटेल्स नहीं दिया, राइट? तो अगर कोई चीज पिछली क्लास में आपने पढ़ी हो, आप अभी नोट्स के थ्रू गो ओवर करो। अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि ये आपने पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। मिनरल रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है? बेटा मिनरल्स के लिए व्हाट वी जनरली वांट टू डू, देखो मिनरल्स इज लाइक सॉइल इज ऑलरेडी अ माइन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का ज्यादा इशू नहीं आता,
राइट, बट नाउ वी वांट कि ज्यादा मिनरल प्लांट में एक्यूमुलेट हो, राइट, नॉट ऑल, सम, ठीक है, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन में आयरन चाहिए और आयरन की डेफिशिएंसी इज वेल नोन, बहुत वाइड स्प्रेड भी है, खास करके इंडिया, अफ्रीका, इन जगहों पे आयरन की डेफिशिएंसी काफी ज्यादा था, मोस्टली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल इश्यूज, राइट। तो नाउ व्हाट वी वांट इज, वी वांट कि ज्यादा आयरन प्लांट में हो, इसके लिए वंस अगेन वी आर टर्निंग टुवर्ड्स जीन मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो मिनरल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सॉइल पूरा कर देता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, थोड़ा बहुत अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए यू कैन add a few products, but most of the terms में soil पूरा कर देता है। It's नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये ज्यादा जनरली हम फर्टिलाइजर से ऐड करते हैं, बट वंस अगेन ज्यादा ऐड किया तो भी प्रॉब्लम है, राइट। सो इफ यू मेंटेन अ बैलेंस, अगर आप एक बैलेंस बना के चल रहे हो, राइट, तो यू आर डूइंग अ गुड जॉब। बट अगर कम पड़ रहा है मिनरल, फिर तो फर्टिलाइजर्स डालना ही पड़ेगा, है ना, मैन्योर्स डालना ही पड़ेगा, और फर्टिलाइजर से अच्छा मैन्योर है क्योंकि हार्म तो नहीं करेगा एटलीस्ट, राइट। सो मिनरल्स के लिए द सोर्स इज सॉइल एंड द फर्टिलाइजर्स एंड द मैन्योर्स जो आप प्लांट्स में डाल रहे हो, ठीक है, इतना क्लियर है? एनी अदर डाउट्स? चलो, ओके, सो आई विल स्टार्ट आस्किंग माई डाउट्स नाउ, ठीक है। आप लोगों का समय था, यू पीपल आस्क्ड, नाउ अब अपना टाइम आएगा, इज इट्स नाउ माय turn to switch the blades. So guys, before I go towards question, very important, trackers को please हर हफ्ते ये अपडेट होता है, एवरी संडे नाइट या मंडे सुबह तक ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो यू कैन एक्सेस ऑल द लेक्चर्स फ्रॉम हियर, अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता कोई बात नहीं, आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। नाउ गाइज, यूट्यूब और स्पेशल तो आपकी कई तरीकों से मदद करता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट, बट देयर इज ऑल्सो अनअकैडमी प्लस। बेटा प्लस इज एन अमेजिंग थिंग, क्यों? क्योंकि आपको आपकी कैटेगरी के लिए अनलिमिटेड अनलिमिटेड कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आपके टॉप एडुकेटर्स होंगे, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, मेंटोरशिप होगी, राइट। सो पूरा मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है और आप घर बैठे पढ़ते हो अपने मोबाइल फोन से, राइट। यू डोंट हैव टू वॉक आउटसाइड और वेस्ट योर टाइम, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ लॉट बेटर। ये एक मेरा बैच है जो अभी काफी समय से चल रहा है और अब अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, राइट। दिस इज फॉर एनटीएससी स्टेज 1। बट इससे भी आगे कभी एक बैच आया है परीक्षा करके, जिसमें क्या होगा ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सारे टॉप एडुकेटर्स दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट, राइट। नाउ कैसे सब्सक्राइब करना है? बहुत इजी। सबसे पहले गो फॉर योर कैटेगरी, चूज अ प्लान जो थोड़ा लंबा हो। क्यों लंबा हो बेटा? बिकॉज लंबा होने से पर मंथ प्राइसिंग जो है आपकी घट जाती है, एंड देन व्हेन यू अप्लाई द कोड SONA05 यू गेट अ स्ट्रेट अवे 10% ऑफ। देख लो 722 रुपए पर महीना। अब गाइज एक और चीज है कि बेनिफिट क्या है सब्सक्रिप्शन के, आइकॉनिक क्या है? आइकॉनिक में प्लस के सारे फीचर्स मिलते हैं, यू गेट ऑल द फीचर्स ऑफ प्लस। इसके अलावा यू गेट पर्सनल मेंटोर एज वेल हु वुड बी एबल टू हेल्प यू आउट, लाइव डाउट सॉल्व आपका हो सकता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कुछ बहुत ही NSEGS IJSO वाला, यू माइट वांट टू एक्सप्लोर आइकॉनिक। वीकली रिपोर्ट्स मिलते हैं, पेरेंट कनेक्ट सेशंस होंगे। तरीका तो इसका भी वही है कि आपके पास आपको सबसे पहले कैटेगरी चूज करना है। वंस यू हैव चोजन द कैटेगरी यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, और वंस अगेन गो फॉर अ बड़ा महीना। बड़ा महीना मतलब बड़ा ड्यूरेशन से क्या होगा, आपका पर मंथ प्राइस घट जाता है। कोड क्या है? वंस अगेन सेम SONA05, और इससे क्या होगा, आपका पर मंथ प्राइस घट गया। इमर्ज के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट्स अ वेरी ग्रेट टेस्ट जो हर वीकेंड होगा, विच विल अलाउ यू टू प्रैक्टिस मैथ्स एंड साइंस के MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग अ फ्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग अ फ्यू प्रॉब्लम्स। यस, आई थिंक यहां से प्रॉब्लम्स है, ठीक है। You have to choose A, B, C, D. Which of these are correct about the set of assertion and reason? Fertilizers have a greater risk of harming ponds and lakes.
फर्टिलाइजर्स आर मोर सॉल्युबल देन मैन्योर्स। ठीक है, वही सेम पुराने स्टेटमेंट्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन इज प्रॉपर। Both statements are true, but the reason is not explanation. Assertion is correct, reason is not. Both are wrong. Very good. Guys, sometimes I intentionally keep on changing the options of assertion, reason, questions. ठीक है guys, assertion, reason, question के options में कभी काल जानबूझ के change कर देता हूँ। जैसे यहाँ आप देखो, both assertion, reason are wrong. कभी काल आपको 5 options मिलते हैं, assertion is wrong, reason is correct, reason is wrong, assertion is correct. ई में आता है both assertion are wrong. इसका रीजन ये है कि अलग अलग स्टेट्स कभी काल अलग अलग पूछ लेते हैं, and that is why I don't want you to be hampered by it. So that is why I intentionally sometimes do this. Okay, so please make sure that you read the options very carefully. फर्टिलाइजर के पास ग्रेटर रिस्क है, इट्स अ कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही जवाब है। फर्टिलाइजर्स आर मोर सॉल्युबल देन मैन्योर्स, दैट इज आल्सो ट्रू, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, एटलीस्ट नॉट अ फुल एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि बेटा फर्टिलाइजर्स हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन, इस हाई कॉन्सेंट्रेशन से आपका एल्गी का ग्रोथ होता है। इट इज द कॉन्सेंट्रेशन that changes the whole game. अगर less concentration में ये algae जाता तो कोई problem नहीं होता, it wouldn't have been a problem, but high concentration में जा रहा है, और ये जो high concentration में जा रहा है, this becomes a problem, right? यही आपके लिए problem बन जाता है, right? So guys, this is where you have to थोड़ा सा think very critical, ठीक है? Okay, क्योंकि manures में बहुत कम है, इसीलिए अगर वो चला भी जाएगा, नॉट अ बिग डील। ओके, चलो। वाइल्ड टोमेटो स्पीशीज लाइकोपर्सिकम पेरुवियनम, वाइल्ड टोमेटो मतलब ऐसे ही पाया जाता है वाइल्ड में, इन द नेचर। एंड कल्टिवेटेड टोमेटो, कल्टिवेटेड टोमेटो मतलब जिसको आप उगाते हो खाने के लिए। सोलानम लाइकोपर्सिकम were used to produce a hybrid that was resistant against टॉस्पोवायरसेस, राइट? एक इनको कंबाइन करके एक ऐसा हाइब्रिड बनाया गया जो टॉस्पोवायरसेस को के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, यूजिंग टेक्निक 1। टेक्निक 1 क्या है मुझे नहीं पता। बीटी कॉटन इज अनदर एग्जांपल, राइट? वो भी रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन दैट इज डन बाय टेक्निक 2। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं इसमें से कौन सा टेक्निक है जो 200 साल पहले भी था और अभी भी है, व्हाट वुड बी योर रिप्लाई? सेम ही क्वेश्चन को बस घुमा फिरा के पूछा है ना? क्वेश्चन वही है, इजी वाला ही है, बस आगे से नहीं पीछे से जाके पूछा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट इट्स मेकिंग। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू मच हियर। सोचो, कम ऑन। टेक्निक 1 सेज अश्विन, वेयर आर द अदर्स? मुझे बाकी लोग क्यों नहीं दिख रहे? सम्यक, सिमरन, सिमरन आर यू हियर बेटा? कृतिगन, अमलान तो खैर बहुत दिन से नहीं आ रहा, बट या श्रेया सेज बी, ओके ओके। अब देखो, टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड, आपने 2 स्पीशीज को लिया जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, राइट? ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। इस टेक्निक को आप कहते हो टेक्निक 1 जो है आपका, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बनाने की टेक्निक, राइट? टेक्निक 2 जो है जिसमें आप एक बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस जीन निकाल रहे हो, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना? प्रोड्यूसिंग अ जीएमओ के लिए आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो 1970s 80s में स्टार्ट हुआ था, 200 साल पहले का तो बात ही नहीं हो सकता। सो ओनली टेक्निक 1 कुड हैव एग्जिस्टेड एट दैट टाइम, व्हाइल टेक्निक 2 को हम कब से करते आ रहे हैं, राइट? चलो, which of these is correctly labeled diagram? Green and violet dot represent 2 different plant varieties. ठीक है, ग्रीन डॉट्स और वायलेट डॉट्स जो है
दो डिफरेंट प्लांट वैरायटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? Come on guys, think. Come on, why I don't get replies in the chat box? Yes. Okay, so we can see a definite pattern. यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है बेटा? एक definite pattern, alternate rows of green and violet. यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे मुझे mixed दिख रहा है, right? So B is mixed cropping, है ना? B represents mixed cropping, whereas A prevents the spread of weeds because A is intercropping. देखो मैं इसको डायरेक्टली पूछ सकता था, भैया इंटरक्रॉपिंग है मिक्स क्रॉपिंग है, मैंने बस क्या किया, मैंने इंटरक्रॉपिंग का एक फीचर ले लिया कि इंटरक्रॉपिंग प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ वीड्स, बस, और कुछ भी नया नहीं किया गया इसमें, ठीक है? सो करेक्ट आंसर वुड बी सी। चलो, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल हम किनको बोलेंगे? याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर। मैन्योर्स आर नॉट लिविंग एंटिटीज, दे आर मिक्सचर्स। मैंने ज्यादा बोल दिया बट चलो ठीक है, पहले आप आंसर करो फिर विल टॉक अबाउट। बेटा बायो फर्टिलाइजर 2,4-D श्रेया, 2,4-D इज अ हर्बिसाइड, हर्बिसाइड है वो, वीडीसाइड है वो। नीम इज अ पेस्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड है, ये वीडीसाइड है। फार्म वेस्ट इज फार्म यार्ड मैन्योर्स, राइट? ब्लू ग्रीन एल्गी इज एन एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, राइट? ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल है। नीम एक बायो पेस्टिसाइड का एग्जांपल है। टर्मरिक बायो पेस्टिसाइड का एग्जांपल है, ठीक है? तो बेटा थोड़ा सा इस तरह से ही आपको चीजों को समझना होगा, ठीक है? वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी थोड़ा सा टेक अप वन मोर टॉपिक। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज कन्फर्ड बाय मिक्स्ड क्रॉपिंग? मिक्स्ड क्रॉपिंग से इसमें से कौन सा एडवांटेज है जो आपको नहीं मिलता? How it is a biofertilizer? It also use nutrients to grow, but it fixes nitrogen, अश्विन। फर्टिलाइजर क्या करता है? आपको न्यूट्रिएंट्स देता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ नाइट्रोजन फिक्सर, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करके आपके सॉइल में अमोनिया और नाइट्रेट्स का अमाउंट बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इट इज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है बेटा? हाय मिलबिन, गुड इवनिंग बेटा। Insurance against crop failures, sharing nutrient load on soil, blocking spread of weed or pest. Okay, insurance against crop failures. Mixed cropping में भी आप दो क्रॉप्स उगा रहे हो बेटा, तो एक क्रॉप फेल हो गया तो एटलीस्ट दूसरा तो है। सो ए इज एन एडवांटेज, ए एडवांटेज है। शेयरिंग न्यूट्रिएंट लोड, बिल्कुल भी, है ना? हमारे पास दो क्रॉप्स हैं, दोनों क्रॉप्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होने वाली है, एंड बिकॉज दे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, तो वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूट्रिएंट लोड, सो डेफिनेटली दिस इज एन एडवांटेज। अब ब्लॉकिंग द स्प्रेड, अब सोचो मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई फिक्स्ड पैटर्न तो होता नहीं है, इट इज वेरी इजी फॉर अ पेस्ट और अ वीड टू क्रॉस ओवर। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है? देयर आर फिक्स्ड पैटर्न्स, मे बी ऑल्टरनेट होता होगा, है ना? और इस फिक्स्ड पैटर्न की वजह से क्या होता है? वीड्स एंड पेस्ट्स, राइट? वीड्स और पेस्ट्स जो स्पेसिफिक होते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। सो इट इज नॉट एन एडवांटेज, सी इज नॉट एन एडवांटेज कन्फर्ड बाय मिक्स क्रॉपिंग। सर बायो फर्टिलाइजर ओनली केमिकल्स हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स जो वैसे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराते हैं। बेटा बायो वर्ड आते का मतलब ये है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। नीम
इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट, राइट? उसी तरह, और एक्चुअली इट शुड बी एन ऑर्गेनिज्म, ओके, इसी तरह। क्लियर है? चलो, ओके, ये क्वेश्चन सब बाद में करेंगे। लेट अस सॉर्ट ऑफ रीस्टार्ट वेयर वी लेफ्ट। सो विल सी अ वेरी, इंटर में ज्यादा से ज्यादा एक पूरी रो खराब कर सकते हैं, बट अलगी रो में जाने के बैरियर दूसरा क्रॉप आ जाता है। बिल्कुल सही अश्विन, यही मैं आपको चाहता हूं। कैन यू टेल अस 5 बायो फर्टिलाइजर्स? Okay, 5 can be nostoc, anabena. You can count, blue-green algae or cyanobacteria into them. What else can you count? No, I think that makes only 3. But there are many. If you want a list, of them, एक second रुको. I had the list with me. You can take a list, not a big deal. ये लिस्ट आपको कहाँ, नहीं ये तो मैन्योर्स हैं, सॉरी, एक सेकंड बेटा, लेट मी जस्ट, विल फाइंड अ लिस्ट, डोंट वरी, उसका लिस्ट आपको ये मिल जाएगा। दिस इज द पर्पस, लेट मी सी इफ आई हैव अ लिस्ट। ओके, नाउ दिस इज अ गुड लिस्ट, ठीक है। सो बैसिलस, स्यूडोमोनास, अब देखो यहाँ पे बैसिलस और स्यूडोमोनास इनके स्पीशीज नहीं दिखे, बट यू कैन इंक्लूड माइकोरिजा, some penicillium species, right? Azotobacter, Azospirillum, there are many, right? आपको इनके नाम बिल्कुल नहीं रटने, you don't need to mug up all the names, 2-3 याद रखो, उतना काफी है, right? If you remember just 2 or 3, that's okay, serves the purpose, right? As long as you are good with the concept, serves the problem. Bacillus बेटा नाम है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध में पाया जाने वाला रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, राइट? नाम है बेटा, ठीक है। चलो, सो गाइस, व्हाट इज एक्वा कल्चर? एक्वा मतलब पानी, कल्चर मतलब ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स इन दैट बिलोंग टू वाटर, जो आपके लिए फूड और सम अदर चीज देती है, जैसे फिशेस, प्रॉन, श्रिम्प्स, ऑयस्टर्स एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब आप कुछ मछलियों को या कुछ ऑर्गेनिजम्स को फ्रेश वाटर में करते हो। फ्रेश वाटर मतलब पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स। कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने जरूरी हैं। कटला, रोहू, मृगाल, ऑल ऑफ दीज आर फ्रेश वाटर फिशेस। ज्यादा नाम मत रटना, बट ये नाम इंपॉर्टेंट है बेटा। मैरीकल्चर मतलब ऐसा कल्चर ऑफ फिशेस जो आप, या ऐसा कल्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन सॉल्टी वाटर। एग्जाम्पल सैल्मन्स एंड प्रॉन्स। अब एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर में कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज पीसी कल्चर? पीसी कल्चर का मतलब ग्रोइंग और कल्चरिंग फिशेस, रियरिंग फिशेस, राइट? एक्वा कल्चर मतलब सारे लोग आ गए, मछलियां, प्रॉन्स, आपके ऑयस्टर्स, श्रिम्प्स, एवरीथिंग इज एक्वा कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब just fishes, right? And once again you can have fresh or you can have marine, right? Okay, study of fish, something to PC, something logic, you have to check the internet. Okay, now it could be extensive. PC culture extensive हो सकता है और PC culture intensive हो सकता है। अब यहां पे समझ के आंसर करना। एक्सटेंसिव का मतलब बड़े नेचुरली प्रिपेयर्ड एरियाज में हम ग्रो करते हैं, जैसे कि बड़ा लेक हो गया, बड़ा पॉन्ड हो गया। नेचुरल फीडिंग पे डिपेंड करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें मछलियों को दाना दोगे, नो, दे आर ऑन देयर ओन, राइट? सो दे आर ग्रोन इन लार्ज एरियाज, दे हैव लो डेंसिटी ऑफ, इसको कहते हैं लो स्टॉक डेंसिटी। स्टॉक का मतलब है वही फिशेस की बात कर रहे हैं, राइट? लो स्टॉक डेंसिटी, ओके, एंड नेचुरल फीडिंग, मतलब आप ज्यादा फीड नहीं करने वाले हो, वो जितना फीड कर रहे हैं बहुत बढ़िया। इंटेंसिव का क्या मतलब हो जाएगा? छोटे एरियाज पे,
मतलब आप अपने घरों में आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना रहे हो. आई डोंट नो इफ यू पीपल वॉच दोज वीडियोज. अगर आप यूट्यूब पे जाके ही यू विल सी, तो आपको इंडिया के कई सारे इंटेंसिव पॉन्ड्स मिलेंगे. मतलब आप बस खोजना, आपको बहुत कमाल कमाल के वीडियोस मिलेंगे. एंड if you see those videos you will feel more connected to the world that you live in. I mean, कई सारे, नो नॉट एक्वेरियम्स निजाम, नॉट एक्वेरियम्स. मतलब देखो, आई मीन यहाँ क्लास में बैठे जितने लोग हैं, हाउ मेनी ऑफ यू ईट फिशेस? कितने लोग फिशेस खाते हैं? ओके, जस्ट टाइप 1 2 3 4. जस्ट पहले वाले ने 1 टाइप किया, दूसरा वाला 2 टाइप करना, तीसरा वाला 3 टाइप करना, एंड सो ऑन. जस्ट टाइप 1 2 3 4 5 6. आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू ईट फिशेस. Not me. Neither do I, but ठीक है, many people do. So come on, can I have numbers? No one? Wow, no one eats fishes? 0. Prachi is 1. Allergy, okay. Okay, chalo, not a population of people who eat, ठीक है. So I think there are this just 2 people who eat fishes here. Okay, no worries. So guys, when you see these kind of videos, why मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वीडियोस को देखो, क्यों? क्योंकि you will know कि अच्छा, यही तो मैं पढ़ रही थी या पढ़ रहा था अपने बायो क्लास में. ये देखो, राइट, ये देखो, जो मैं पढ़ रहा था वो मेरी लाइफ का ही हिस्सा है. Right, so that is why watch those videos. I wish I could show you those videos here. Unfortunately I can't, copyright issues and everything, but आप देखना कभी, बहुत मजा आएगा. Right, so intensive meaning स्मॉल एरियाज में, हाई डेंसिटी में हम क्रिएट करते हैं उसको, और ज्यादातर केसेस में उनको आर्टिफिशियल फीडिंग करना पड़ता है. राइट, अब कई लोगों ने कई कमाल के combinations create kiye, and I will talk about such combinations in detail. But what is a monoculture and what is a polyculture? Monoculture का मतलब क्या है? One type of fish only. Polyculture या composite fish culture का क्या मतलब है? More than one type. अब more than one type of fish का मतलब है they have to have different food, वरना एक दूसरे को खा बैठेंगी, वो हमें नहीं करना. सो कॉम्पोजिट फिश कल्चर जो होता है, वी मेक श्योर कि कॉम्पोजिट फिश कल्चर में जो फिशेस को हम लगा रहे हैं दे आर डिफरेंट फीडर्स, है ना. कोई एल्गी खाते हो, कोई दूसरी चीजें खाते हो, कोई तीसरी चीज खाती हो. राइट, सो पॉलीकल्चर में इसको देखना जरूरी है. आज का लास्ट टॉपिक, एंड विच इज आई थिंक मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो. दिस इज इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग. इंटीग्रेटेड क्यों? क्योंकि यहां पे आप क्लियरली, आपको प्लांट्स दिख रहे हैं और यहां पे आपको क्लियरली फिशेस दिख रहे हैं. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, फिशेस आर एमोनोटेलिक और दे आर एमोनोटेलिक, सम फिशेस आर यूरियोटेलिक. राइट, अब ये फिशेस एमोनोटेलिक है, यानी इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया है. ये अमोनिया इस पानी में प्लांट के लिए फर्टिलाइजर का काम करता है. और इस कॉन्सेप्ट को कई बड़े बड़े लेवल्स पे डेवलप किया जा चुका है, कई बड़े बड़े लेवल्स पे, और सोफिस्टिकेटेड तरीकों से इसको डेवलप किया जा चुका है. एंड आई विल शो यू सम एग्जांपल्स. राइट, आई विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑन हाउ this has been done. Fish can also be a biofertilizer in a manner, yes. Right, in a manner, yes. Right, so the fish को लेकिन आपको फीड करना पड़ रहा है यहाँ पे. Right, so they will feed. Right, so you have to keep on feeding the fish. तो it's not independent. आपको बैक्टीरिया या फंजाई को खाना नहीं देना पड़ता, वो अपना व्यवस्था खुद कर लेते हैं. इन मछलियों को you'll have to feed something. और अगर एल्गी ग्रोथ हो रहा है तो that algae growth will also do the purpose. How do fish excrete? They also have kidneys like us. They have cloaca. Cloaca is a common opening beta which connects all the 3 tubes and वहीं से excretion हो जाएगा. Right? Okay. Now guys, आपकी स्क्रीन पे कुछ नाम है,
try to remember these names, especially Katla Katla, Labio Rohita और मृगाल Sirinus mrigala. So biofertilizer में only it has to be a living organism, right? It has to be a living organism. So Katla Katla, Labio Rohita और Sirinus mrigala, please remember these names, right? और आप एग्जाम्पल्स याद रखना कि ये सारे फ्रेश वाटर है और ये सारे के सारे मरीन फिशेस है, ठीक है गाइज? एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव? अभी तक कुछ समस्या जो आपको समझ में नहीं आया? Anyone who wants to ask something? No one. Sir, all is good, all is well. आप टेंशन मत लो. Come on guys. Okay, so guys, do remember to like these videos यार, because देखो I will be honest, we evaluate how, you know, how cool a strategy is. Is it really helping you people? So your likes and shares and, you know, subscriptions, that is how we understand कि चलो ठीक है, this is working. Okay. Sir, I wish to see integrated fish farming, but even I wish to. मतलब I want to see it live, you know, see it happen in a place. तो right now the best option is YouTube videos. आपको YouTube videos में दिख जाएगा. Somebody must have uploaded the video. I'll try to share something on Instagram. Sorry, Telegram, not Instagram, Telegram पे, ठीक है? But with limits obviously. Marine, बेटा marine मतलब salty water, बेटा salty water. राइट, सो विल टॉक मोर अबाउट दिस इन दी कमिंग क्लास. अभी जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी उसमें हम इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे. सर योर टेलीग्राम आईडी आई विल शो एट द एंड बेटा. सोना सिंह अनअकैडमी, राइट? सर आप आईबीओ इन लेक्चर्स को इंटीग्रेट कर दो, उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा. बेटा पहले मैं आईबीओ के क्वेश्चंस को इन लेक्चर्स में लाया करता था, बट मेनी पीपल did not align with it. Some people really liked the concept, some people sort of felt कि वो बहुत ज़्यादा है. I even heard कि सर ये तो NTSE नहीं है. So guys, believe me, you people are the drivers of the lesson, right? अभी जैसे हम NSEGS लेवल तक जा रहे हैं, पहले हम IBO लेवल तक जाते थे, सॉलिड जाते थे, बट इसीलिए अब IBO जो है उसका सेपरेट प्रैक्टिस या तो सैटरडे को होता है या तो शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, right? But okay, I will take this as a feedback and I will try to integrate them in future. I'll try to integrate. अब क्योंकि वैसे भी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, तो अब प्रैक्टिस सेशन ज्यादा लगेंगे आपके, ठीक है? Okay, so guys, is this new feature called ask a doubt. Do explore this as well, जहां आप डाउट्स को फोटो खींच के सिंपली भेजो और आपको उसके इंग्लिश हिंदी वीडियो सोल्यूशन मिल जाते हैं, राइट? ओके, so guys, all you need to do is take a picture, अपलोड एंड यूल गेट अ सोल्यूशन, राइट? अब कॉमन सेंस वाली चीजें फॉलो करना बेटा. एक बार में एक क्वेश्चन पूछना, यू नो, पूरा पेपर मत छाप देना, लेजिबल दिखना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, तभी तो आपको आंसर मिलेगा, राइट? एंड ऑब्वियसली इफ यू फाइंड सम इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यू कैन लेट अस नो एंड विल टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, ठीक है बेटा? सो गाइज, डू नॉट मिस द स्पेशल क्लासेस. अभी 10th ग्रेड के मेरे सारे स्पेशल क्लासेस ओनली हैपनिंग ऑन द अनअकैडमी ऐप. अभी हमने जेनेटिक्स वहां चालू किया है. 10% discount you can avail also by using the same code, that is Sona05. ठीक है? क्या जैन में होगा या दिसंबर में? स्टेज 1 एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी बेटा? अभी तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो नवंबर के अराउंड ही होगा, नवंबर दिसंबर में. आपको इंडिविजुअल स्टेट्स को चेक करना पड़ेगा. स्टेज 1 के डेट्स के लिए इंडिविजुअल स्टेट्स को चेक करते रहो. आईबीओ का सिलेबस ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा. I agree, but there is some logistics things जिसके around मैं भी नहीं जा सकता. Sir, why you don't answer people on Unacademy? अच्छा, वो मैसेज वाला यार, that is why. अच्छा चलो, I'll look towards it. ज़्यादातर केसेस में I answer on the Telegram, which is the next chapter. We'll try to pick up natural resources. human I पढ़ना है हमें, उसके बाद natural resources start हो जाएगा. Telegram पे I do answer. टेलीग्राम पे इफ यू पीपल सी गाइज, देयर आर 2 टेलीग्राम्स. एक तो ऑफिशियल टेलीग्राम है जहां पे यू कांट सेंड मैसेजेस, बट टीचर्स कीप ऑन पोस्टिंग देयर यू नो सेशन अपडेट्स. तो वो आपको सारे सेशन अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे, अनअकैडमी, एनटीएससी फाउंडेशन. और दिस इज वेयर यू कैन कनेक्ट विथ मी, सोना सिंह अनअकैडमी, ठीक है? यहाँ पे यू कैन कनेक्ट विथ मी, आस्क एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव. सर व्हाई यू आर नॉट टेकिंग मेंटी? बेटा मेंटी
और कॉन्सेप्ट का बैलेंस करना जरूरी है, वरना क्या होता है कि you people get so involved with mentee that you forget about the concept. So इसीलिए there is a gap, हर हफ्ते 2 मेंटी या 1 मेंटी होता है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटी आपका फ्राइडे को होता है, फ्राइडे इज ऑलवेज प्रैक्टिस और समथिंग एक्स्ट्रा, सो दैट्स व्हाई, ठीक है। सो गाइज डू रिमेंबर टू लाइक द सेशन, ओके, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, do remember to subscribe, and also सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही नहीं, make sure that you also click on the bell icon, ठीक है। चलो guys, thank you so much, we will meet very soon. I will definitely, Ashwin, I will definitely just give me some bandwidth, ठीक है। चलो, thank you so much guys, कल का सेशन मत भूलना, हार्ट प्रेशर्स और वॉल्यूम्स पे है, सुबह का आईबीओ वाला क्वेश्चन, आज भी एक आईबीओ क्वेश्चन आया था शुगर ट्रांसपोर्ट पे, डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।